Hi. Thank you for joining us today. It's a pleasure to present the investor presentation for Jungle Camps of India. Okay. Our properties are nestled into the heart of India's pristine forest. Our camps offer more than just an escape; they offer an immersion into nature, adventure, and wildlife in its purest form. Through the May I presentation, know who I'm talking to? yes. Can we So my introduce name is ourselves first? yeah, of Huh. course. Sorry. Yes, my name is Yashovardhan Rathore. I'm one of the promoters, and I look after the operations also. Okay. आप कहाँ से? Where are you from? आप कहाँ से हैं originally? Right now, I'm in Delhi. Delhi is our head office, Okay. and But I'm you're here. from MP or you're from Rajasthan? Natively, I'm from Rajasthan, Okay. but I've been born and brought up in Delhi only. Okay. And sorry, Ayash, I'll first give a quick introduction. We can look at Of the course, present. please. ये आपने why this uh, okay, I'll give a quick introduction. I'll give you the context for the discussion. Okay. Yeah. Um, so my name is Pranay. I'm the CIO and founder of Tusk Investments. It's a proprietary investment fund, and we are based out of Calcutta. As you can see from the name of the firm, which is called Tusk Investments, it is obviously after the elephant. And I used to be a consultant for 10 years, and it's probably in 2013 and 2014, all across Africa and obviously across India as well. And actually, my goal has been also to do a lot of conservation work. That's one of the things that hopefully we will do in a large way in India, following a little bit the model that is there in Africa, which is a little more evolved, but hopefully parts of that will come to India. And obviously I love hospitality on top. So this call is a little bit driven by my desire sort of to do sustainable hospitality, to use the proceeds for hospitality to showcase India's wildlife to the world, and hopefully with that do very, hopefully we will all end up doing conservation and saving sort of the forest that we have in this country. So I think that's a little bit the backdrop, and it's important for you to understand that the numbers are the numbers, and that's all okay. Does that help, Yash? Happy to answer any questions It on your end. definitely helps. And yeah, let me introduce you. I'm here with Mr. Gajendra Singh Rathore. He's our MD, and I'm here with Mr. Ajay Singh also. He's the CFO. Mr. Abhishek Agarwal, he heads the marketing and the reservation. I'll hand over to Okay. Mr. G.S. Rathore. Yeah, just a moment. हेलो मिस्टर अग्रवाल। Hi. Hi. नमस्कार। Namaskar. अच्छा लगा सर आपको वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटैलिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इस वाली सोच के बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस के साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे भी फोकस्ड हैं। बहुत अच्छा अभी लगा आपसे। जैसे कि अभी ग्रेट प्लेन्स, अगर आपने सुना है, रेले शैटो के साथ एक ग्रेट प्लेन्स करके एक कंपनी है जो बोट्सवाना में है और जो केन्या में है। सो वी हैड गॉन एंड स्टेड, बट अभी उसका सीईओ भी इंडिया आया था। सो आई हैड गॉन टू दिल्ली टू सॉरी गॉन टू बॉम्बे टू मीट हिम। एंड मैंने उनसे कहा है कि हमें ये कॉन्जर्वेशन इंडिया में करना है। आई एम फाइंडिंग सम टी गार्डन्स इन असम और इन दोआर एरिया, जो मैं लूंगा। मेरे दोस्तों का ही रहेगा कलकत्ता में। मैं कह रहा हूँ आप आके यहाँ होटल बनाइए, और आप मेरे किस पैसा लेना है, आप होटल के लिए मेरे से पैसा ले लीजिए आप, और वो सारा पैसा आप कॉन्जर्वेशन में लगा दीजिए। यहाँ का हाथी, यहाँ का चीता, आप यहाँ का लेपर्ड, सॉरी, आपको जितना बचाना है बचाइए, मुझे कोई फर्क नहीं है। So I mean, for me, this is a hopefully at Tusk Investments we will be able to do that in our lifetime. We will be able to do conservation the way they've done it in South Africa and in Zimbabwe and all, especially, right? I mean, they have just done incredible work over there. अगर आप राजस्थान से हैं तो इन्होंने ये लेपर्ड का भी काफी अच्छा काम किया है, सुजान ने ये जबई में। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स अ डिसेंट मॉडल एटलीस्ट, बट उन्होंने बहुत जमीन खरीदा है वहां पर, काफी लीज की है। सो दैट्स अभी अ लिटिल बिट द बैकग्राउंड। आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट टू टेल यू दैट वी विल ऑब्वियसली गो थ्रू ऑल द नंबर्स एंड एवरीथिंग, बट दिस इज रियली व्हाई आई एम हैविंग दिस call.
अब साइड बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टाइगर्स बढ़ रहे हैं, उनका भी ना अब ह्यूमन हैबिटेट्स में आना जरूरी हो गया है। मतलब क्या करें, जंगल उनको स्पेस नहीं बच रहा है और वहाँ के लिए। टाइगर 20 स्क्वायर किलोमीटर तो है क्या नंबर, जहां तक मुझे याद है? मतलब इसका एग्जैक्टली मेजरमेंट तो नहीं ले सकते हैं, बट आप कह सकते हैं कि 20 से 25 स्क्वायर किलोमीटर में एक टाइगर अपनी टेरिटरी मार्क करता है। हाँ, और जैसे नंबर्स बढ़े तब आपने राजस्थान देखा में होगा तो वही कि नंबर्स हैं जहां तक मैं जानता हूँ। नहीं, राजस्थान में एक्चुअली दो ही टाइगर रिजर्व हैं जो नॉन है, सरिस्का और रणथंभौर। एरिया वाइज हम्म। काफी काफी बड़े एरिया में फैले हैं, बट उनकी भी डेंसिटी के हिसाब से देखें तो वहाँ भी जंगल छोटा पड़ रहा है। और अभी गांव गांव में मतलब कई बार ऐसे हादसे हो रहे हैं कि टाइगर को गांव में जाना पड़ता है, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में कुछ मतलब लोगों को भी जान देनी पड़ रही है। तो आप अगर हम, ओरिजिनली कहाँ से हैं? मैं राजस्थान में चूरू नाम से जगह है वहां से हूँ। हाँ, बट हमारा जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सेंट्रल इंडिया में है, कान्हा, हाँ, वो सब पेंच। एमपी में मैंने हाँ, देख लिया। वो- वहां पर तो ताज और एंड बियॉन्ड ने भी पूरा वो जो सर्किट बनाया था। आई हाँ, हैव बीन टू ऑल द पार्क्स इन एमपी एंड राजस्थान बिल्कुल ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोग को कुंभलगढ़ में क्यों नहीं इन लोग टाइगर रिलोकेशन करना चाहिए? कुंभलगढ़ इज नॉट बैड, नहीं, बहुत ब्यूटीफुल जगह भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली रीलोकेशन वाले तो कई जगह हैं, अगर आपने कुंभलगढ़ देखा होगा तो साथ में बूंदी के पास में रामगढ़ विषधारी है, वो भी बहुत अच्छा टाइगर रिजर्व है, बहुत अच्छा टेरेन है, तो अच्छे से कर रहे हैं। और रिलोकेशन में तो आपने सरिस्का की स्टोरी भी सुनी होगी, सरिस्का में सरिस्का टाइगर तो मैं गया भी हूँ, वहां पर खत्म हो गए थे ऑब्वियसली टाइगर, अमान में मैं 2-3 बार रुका एक हूँ। भी नहीं अब बचा। सरिस्का इज अ गुड वन। बट अब सरिस्का में इन्होंने छह छह रिलोकेट किए थे, अब वहां पे नंबर मोर देन 40 हैं। तो कुछ, सरिस्का इज सुपर। मैंने तो वहां लाइव साइटिंग देखी है 3 टाइगरों की, एक एक अच्छा ड्राइव अच्छा में। अच्छा। हाँ, तो आप सरिस्का में कहाँ, मतलब सरिस्का पैलेस किसी टाइम होता था उसमें तो नहीं रुके थे, कब आए थे आप वहाँ? वहां पर अब एक अमान खुल गई है ना, अमान बाग करके। हाँ, अमन बाग है ना, अमन बाग को काफी वो टाइम हो गया। अमान बाग अजबगढ़ में है, बट वो सरिका मतलब अगर आप सुबह टानोगे, सुबह का ड्राइव मतलब 30-40 मिनट में आप पहुंच जाते हो एंट्रेंस। इट्स नॉट बैड। हाँ, अमन गार्ड वो एक्चुअली टेहला जो गेट है ना, टेहला गेट के पास में पड़ता है, डिस्टेंस वाइज थोड़ा सा दूर है गेट से, बट 30 मिनट्स यार, टाइगर देखने के लिए क्या है 30 मिनट्स? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक्चुअली मेरी एक जमीन है जो जल्दापाड़ा फॉरेस्ट के पास में है। अच्छा। काफी बड़ी। मुझे ना वहां पर एक एक कैंप खोलना है, तो मैं बात करूंगा अलग से। वो जल्दापाड़ा इज अ ब्यूटीफुल पार्क। इट्स गॉट हाँ एंड हाँ, इफ यू बिल्कुल लाइक बिल्कुल। बर्ड्स, एंड इट्स गॉट ब्यूटीफुल बर्ड्स, अमेजिंग हाँ बर्ड्स। हाँ, और जल्दापाड़ा गोरुमारा, एक वहां जगह है गोरुमारा जहां पर आपको, अभी तक आई थिंक आप एलिफेंट का वॉक भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। इवन इवन जो आपका नॉर्थ बंगाल में बाकी सीनिंग इज रियली ब्यूटीफुल, और जल्दापारा, गोरुमारा, ये भी बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस हैं। और ये एक होटल नहीं है, एक हाँ, कॉन्जर्वेशन का मतलब सी नहीं है। हम्म। गोरुमारा इज ऑल्सो गुड। गोरुमारा में मैंने गैंडे भी देखे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड, तो ये आपको तो मेरा बैकग्राउंड मिल गया। हाँ, नहीं नहीं, हम, मुझे लगता है हम सेम ही सोच वाले लोग हैं। अच्छा लगा आपसे। फिर आप बताइए, फिर हाउ डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी? आपने जंगल कैंप्स में क्या किए हैं, आपका क्या विजन है? बिल्कुल। और हाँ, हाउ कैन आई हेल्प? आई वुड जस्ट लाइक टू हेल्प इफ बिल्कुल दैट इन्वॉल्व्स पुटिंग कैपिटल, एंड देन यू कैन सेव मोर, you can showcase wildlife and open more camps and put that back into conservation, and we can have more guides. Nothing like it here. बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी यही फोकस है। देखो, मैं भी वैसे तो मैं सीए हूँ, लेकिन सीए की वजह से ही मेरी ये जर्नी शुरू हुई। तो आप सरिस्का गए तो सरिस्का में सरिस्का पैलेस होता था। अच्छा। सबसे सरिस्का की सबसे पहली प्रॉपर्टी वही थी। ये हंटिंग लॉज था महाराजा ऑफ अलवर का। तो आई थिंक आ, मेरी मदर इन लॉ का 10th या 20th एनिवर्सरी ये सरिस्का पैलेस में हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। 20th या 20 नहीं, 20th एनिवर्सरी। ये कौन बंद से हो गया है साल? क्या? हाँ, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी महाराजा ऑफ अलवर की थी, बाद में इन्होंने सेल कर दिया, एक रंजीत सिंह राठौड़ हैं, अच्छा। उन्होंने ले लिया था, उनका असम में कुछ बिजनेस था। तो मैंने सीए की प्रैक्टिस शुरू की, तो मेरे पहले क्लाइंट होते थे। तो कि उस टाइम मेरा मेन काम यही था, तो इनकी प्रॉपर्टी भी काफ़ी फोकस था, तो मेरा सरिस्का में काफ़ी जाना होता था। तो उस वजह से मेरे को वाइल्ड लाइफ और नेचर का थोड़ा चस्का लग गया। तो शुरुआत वहाँ से हुई है, 93 से लेके 2004-05 तक रूटीन में वहाँ वहाँ काफ़ी जाता था। फिर इस बीच में कान्हा भी जाना होता था। तो मैं कान्हा जाता था, तो कान्हा जाने के लिए नागपुर लैंड करना पड़ता था, और नागपुर से फिर 250 किलोमीटर है कान्हा।
तो बाई रोड जाते थे तो पेंच आता है, पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच के थ्रू जाना पड़ता था। पेंच में उस टाइम कोई प्रॉपर्टी नहीं थी 2002-3-4 में। तो मुझे लगा कि एक अच्छा डेस्टिनेशन है, अच्छा कनेक्टिविटी वाइज भी अच्छा है, और नागपुर के पास में है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो फिर एज शुरू में होता ना एक कि अपना एक बिजनेस कम दोनों चीज़ें हो जाएंगी, मतलब पैशन और जो ये इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से ये प्रॉपर्टी हमने पेंच में खोली थी, 2006 में चालू हुई थी। और 2006-7 में एंड बियॉन्ड की प्रॉपर्टी जो आप बता रहे हो उस टाइम वो भी खुली थी, वो बाद में ताज सफारीज ने एंड बियॉन्ड को दिया था वो जॉइंट वेंचर था। हाँ जॉइंट वेंचर था, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ताज सफारी में तो आप जानते हैं वो नेपाल के चौधरी हैं, वो हाँ पार्टनर थे। वो जो नूडल वाले हैं ना, उन्हीं का तो है, हाँ वो उन्होंने हाँ एंड बियॉन्ड को खरीद लिया है। हाँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म तो हम्म। उसके बाद फिर उस टाइम मैंने कान्हा में और सरिस्का में यहाँ में कुछ लैंड पार्सल ले लिए थे, इंटरेस्ट था, क्योंकि कैपिटल नहीं होती थी, हम लोग फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हैं। तो सोचा कि ठीक है, जब कभी पैसे आएंगे तो फिर यहाँ बनाएंगे। तो फिर 2019 में फिर हमने कान्हा की प्रॉपर्टी बनाई, और कर लेंगे, कोई बात नहीं, स्लाइड्स को बाद में देख लेंगे। 2019 में कान्हा की बनाई, फिर वो ठीक अच्छी सक्सेसफुली चली, अच्छी लगी, लोगों ने बहुत साइड के लिए बहुत पसंद। आप चिंता मत करिए स्लाइड्स का। हाँ। हाँ हाँ, नहीं ये कह रहे हैं प्रेजेंटेशन कंटिन्यू। को दिखा देते हैं, मैंने कहा पहले एक बार बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन, तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कान्हा हो गया, आपका पेंच हो गया। फिर कान्हा में तो अभी तड़ोगा। काफी कंपटीशन आ गया नहीं? हाँ कंपटीशन आ गया, हमको भी जब शुरू में हमने कान्हा किया तो हमको लगा कि बहुत कंपटीशन है, करें या ना करें। हम्म लेकिन देखिए हमारे जैसे जो सोच वाले लोग हैं ना, उनके हमेशा स्कोप है, क्योंकि जो हमारी क्लाइंटेल है वो वाइल्ड लाइफ फोकस्ड है, उनको ना मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाके छुट्टी मनाने, लीजर के लिए भी लोग आते हैं, बट प्योरली जो वाइल्ड लाइफर हैं वो एक मतलब अलग टाइप के एम्बियंस, अलग टाइप की टीम, वो अच्छे नेचुरलिस्ट चाहिए आपको, सफारीज के बारे में बढ़िया से आपको एजुकेट कर सकें, नेचर के बारे में एजुकेट कर सकें, फोटोग्राफी के बारे में। तो वो एक क्लाइंटेल हमारी बन गई है, उसकी वजह से क्या है, हमारा प्रॉपर्टी लकीली डे वन से ही प्रॉफिटेबल रही है कान्हा के शुरू की से जरूर स्ट्रगल रहा, उसके बाद जो बनी वो इस क्लाइंटेल की वजह से शुरू से ही सक्सेसफुल ये रही हैं, पगडंडी और सफारी भी कंपटीशन एक के और है ना, बावजूद। वो लोग भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं क्या? हाँ पगडंडी सफारीज भी अच्छा काम कर रहे हाँ। हैं। हमारे कंपटीशन में एक्चुअली वही एक कंपनी है जो दोनों तीनों लोकेशन पे है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, उनके भी। लेकिन अभी कान्हा में अगर आप देखेंगे, अगर आप ट्रिप एडवाइजर देखेंगे, बाकी दूसरी साइट्स कोई भी देखेंगे, तो लकीली हम मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंसेस ऑफ गेस्ट। और तो जब मैं पगडंडी वो की पास प्रॉपर्टी में है। एक अच्छी प्रॉपर्टी खोली थी कान्हा में, मेरी वाइफ की फ्रेंड की फैमिली थी, वो पता नहीं, भूल गया मैं नाम। कहाँ पे कान्हा में। नाम क्या था उनका? देखिए कान्हा में अब। जो चार अच्छी प्रॉपर्टी में उनका नाम बताता हूँ, शायद आप समझ जाएं। हम्म। एक हमारी होगी, हाँ। दूसरी है एक सिंगी नवा नाम से प्रॉपर्टी है। वो वाला वो सिंगिनावा, सिंगिनावा। हाँ मैं समझ गया था आप किसके बारे में कह रहे हैं। वो ताज तो अच्छी है है, ही। वो एक्चुअली हाँ एक ताज है। हम्म। तो अब पगडंडी की प्रॉपर्टी कान्हा में ना बहुत दूर है गेट से, तो वो थर्ड गेट में है, उल्टे साइड वाली गेट में है। हाँ तो थोड़ा डिस्टेंस वाला उनका हमेशा इश्यू बट वो रहता। मुक्की आती है कि उल्टे साइड से घुस जाती है? नहीं मुक्की नहीं आते, उनका खटिया खटिया गेट पे आता है। बढ़िया है ना, वहां का तो साला अगर गाड़ी तो मिलता है, मुक्की गेट में तो गाड़ी ही नहीं मिलता है साला कभी। पहले कान्हा का प्लान बनाने के पहले तो हम नेचुरलिस्ट को फोन करता है ताज में, और बोलता है भाई ऑनलाइन साइट देख के बोलो कि गाड़ी कहाँ पर अवेलेबल है। 2 बार तो हमको मंत्री को फोन करना पड़ा है गाड़ी के लिए। बहुत ही मुश्किल है कान्हा में। हाँ ये है सफारी के लिए, लेकिन जो लोग सफारी इस लोग में इस तरह की सफारीज में इंटरेस्टेड होते हैं ना, उनका प्लान पहले से बन जाता है 2-3 महीने पहले, ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे हमको तो जाएंगे। लगता है सब ब्लैक मार्केट वाला लोग पहले सब चीज बुक करके रखा है साला ऑनलाइन। अब लेकिन सब ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई, सब ऑनलाइन होता है ना, पहले होता था, क्योंकि फील्ड डायरेक्टर के हाथ में भी कुछ जगह ही नहीं है यार, गाड़ी का मजाक है, पूरा एमपी में लग रहा है कि लोग सफारी कर रहे हैं, एक गाड़ी का जगह नहीं है। जो आप
मेजर जो डेस्टिनेशन हैं, आप कान्हा ले लीजिए, रणथंभौर ले लीजिए, सब इनमें सब जगह सफारी की मारामारी रहती है। ठीक है, आपने कान्हा, फिर और उसके बाद आपने खोल दिया है। ताडोबा में। ठीक है, तड़ोबा खोले, ताडोबा वहां तो में काफी कंपटीशन है। हाँ, टाइगर की सिटी है, और जब सफारी पे जाते हैं तो एक कम से कम 3 टाइगर दिखते हैं, एक भी नहीं दिखता वहां है। तो चीटिंग होके रखा है, वो गाड़ी के पास में उन्होंने पानी डाल दिया, तो सब वाटरिंग होल में आओ साला और रास्ता में चलो। नहीं नहीं नहीं, नंबर भी बहुत बढ़ गए हैं वहां पे। और ताडोबा में सबसे अच्छा काम उन्होंने किया, जिस हिसाब से मैं कह रहा था कि जंगल छोटे हो रहे हैं, जानवर ज्यादा हैं, ताडोबा में ना बफर बड़े अच्छे डेवलप किए हैं इन्होंने। बफर जोन इज वेरी गुड। हाँ, बफर जोन इज ये वेरी सारे बफर बफर जोन इज जोन गुड। में बहुत एक्सीलेंट वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स हैं। उसका एडवांटेज ये है कि अब नंबर ऑफ सफारीज की भी कमी नहीं है, और आपका फॉरेस्ट भी बढ़ रहा है। वहां पर ये वाला ना बैम्बू लॉज, वो हाँ, वो बैम्बू वन है, ऑफ द। बैम्बू लॉज है ना, बैम्बू सफारी लॉज, बिल्कुल बिल्कुल वो है कोलारा गेट पे। हम लोग हैं मोहरली गेट पे। तो ताडोबा का मोहरली गेट सबसे प्रीमियम गेट माना जाता है, और सबसे पुराना गेट था ये। तो यहाँ पे बस साइटिंग वाइज तो बेंच में आप लोग कौन से गेट पे हो? सॉरी, पेंच में हम टूरिया गेट पे हैं। तो पेंच ऊपर में भी वाली साइड जहाँ जामतारा है, कि नीचे वाली साइड जहाँ पर दूसरी ताज है? साइड में, दूसरी साइड में। जहाँ टूरिया साइड जामतारा है। नहीं, जामतारा अपोजिट साइड में। अच्छा, तो ताज जिस साइड में? हाँ, जहाँ ताज है, बिल्कुल बिल्कुल वो वहां तो पे। मेन गेट है। हाँ हाँ हाँ, उसी में बिल्कुल बिल्कुल। उस लकीली साइड में हमारी खाली ड्यूटी। जामतारा है ना? बट पेंच का तो बहुत छोटा है, पेंच इज वेरी स्मॉल। पेंच में क्या है, पेंच में अब महाराष्ट्र पेंच भी हो गया। अगर आप महाराष्ट्र पेंच ले लें और पेंच मध्य प्रदेश वाला भी ले लें, तो यहाँ पे सफारी के इतना इश्यू नहीं है। फिर पेंच में ना महाराष्ट्र साइड में एक लेकिन सिल्लारी आप पेंच महाराष्ट्र कनेक्टेड ताज है। से तो 40 मिनट्स पड़ता है नहीं? नहीं नहीं, पेंच महाराष्ट्र ताज से पास ही है। खुर्सापार गेट बोलते हैं, वो होगा 15 किलोमीटर होगा ताज से। मेरे को लेके नहीं गया, हम 4 दिन पेंच में था, हम रोज सफारी गया होगा 2 बार। पेंच में क्या है, एक तो खुर्सापार गेट हो गया, हम्म, हम्म, वो महाराष्ट्र साइड में। एक सिल्लारी गेट है, वो भी महाराष्ट्र, वो लेके गया होगा, वो 40 किलो मतलब डिस्टेंस है। हम और एक पेंच में टूरिया गेट 7 दिन गया था खाली सफारी करने, 2 सफारी हाँ। दिन का, 2-3 दिन जामतारा और 3-4 3 दिन मतलब। लेकिन वो खाली हमको तो लोग महाराष्ट्र गेट लेके नहीं गए। हम्म। सरप्राइजिंग एक्चुअली में, बिकॉज द एमपी पार्ट इज स्मॉल। हाँ, बट साइटिंग्स अच्छी है, जंगल इस साइड का बेटर है, एमपी उस वाला। समय वो थी ना, वो बेचारी मर गई, क्या नाम है उसका? कॉलर वाली। हाँ, कॉलर वाली, बिल्कुल उसी बिल्कुल। को लग गया पेंच 3 दिन खोजने में यार। उसमें उसके 29 लीटर्स रहे हैं पेंच में। 29 टाइगर उसी के दिए हुए हैं। तो पेंच हो गया, कान्हा हो गया, फिर आपने खोला है कहाँ पर और? ताडोबा, और फिर अगर आप पेंच में रहे ना, पेंच में एक रुखड़ बफर जोन है। अच्छा। तो एमपी एमपी इको टूरिज्म के वहां पे अंदर मचान होते थे, लेक के साथ में। इनकी 3 लेक है अंदर, एक दूधिया लेक, दलदली लेक। हम्म। तो इन लेक पे मचान बनाए हुए थे पहले, उन्होंने नाइट उसके लिए रखे एक थे। होटल भी था तो ना इन्होंने मचान करके वहां पर? कौन सा? नहीं, वो मचान होटल तो वो आपका वो नहीं, वो महाराष्ट्र में है, पूना वाला अलग है, आपका वो इधर। पूना से जो 2 घंटा दूर है। हाँ हाँ, हाँ हाँ यहाँ पर नहीं थे क्या हाँ मचानों पे? हाँ। अच्छा। नहीं नहीं, इधर तो मचान नहीं है कोई। नहीं, ये पगडंडी वाले तो में हमने भी उनको, ऊपर दे आर लाइक दोस हाई। हाँ हाँ, वो पगडंडी का जो दूसरा है वो ट्री हाउस, हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल ट्री हाउस है। हाँ। हाँ हाँ हाँ, ओके, सो दैट। वो दूसरे गेट। हाँ ठीक है। हाँ, अभी जो है वो तो हम लोग के पास सारे नंबर्स हैं। अब करना क्या है? बिल्कुल। और अब सर आईपीओ हमको कितने किया आपने? आईपीओ अभी शुरू में हमारे पास अभी 4 चीजें हैं। हम्म, एक तो कूनो, आप गवर्नमेंट ने जहाँ चीता छोड़ा है, मोदी जी चीता ने अपने रिलीज बर्थडे किया। में। हाँ बिल्कुल। तो कूनो का जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो श्योपुर पड़ता है। एक तो वापस बताइए, सॉरी। कूनो का जो डिस्ट्रिक्ट है वो श्योपुर है। ठीक है। श्योपुर कहाँ से का, कैसे पहुंचेंगे? श्योपुर अगर दिल्ली से जाते हैं तो नई रोड बनी है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, उससे हम्म। दिल्ली से 5 घंटे पे है ये। रणथंभौर से 35 किलोमीटर दूर है। मतलब वहां पे क्या है कि श्योपुर से रणथंभौर 35 किलोमीटर है, कूनो भी तो अब जयपुर से टान लो ना। हाँ हाँ, जयपुर से 180 किलोमीटर है। जयपुर से 180।
4.5 घंटा ले लो, 4 घंटा। नहीं नहीं, ये रोड अच्छी है ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से हम दिल्ली से 4.5 घंटे में पहुंचते हैं उसमें, 4.5 से 5 घंटे में। लंबा ही है। जयपुर से हम्म। कितना टाइम? जयपुर से 3.5 घंटे, 3 3 घंटे। लाइक रणथंभौर। हाँ, तो यहाँ पे ये फोर्ट लिया है हमने, 15th सेंचुरी फोर्ट है, बहुत सुंदर इसकी लोकेशन है। तो इसमें वाइल्ड लाइफ के अलावा Sorry, there is some background noise. Can someone else who's talking, can you kindly mute? हम्म, Whoever, राघव, अभिषेक, आप लोग अगर म्यूट कर सकें तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाँ हाँ हाँ, हो गया है सर। थैंक यू, तो थैंक यू। तो श्योपुर का फोर्ट हमने लिया है, ये गवर्नमेंट से 90 साल की लीज पे लिया है। तो ये हमारा जो वाइल्ड लाइफ वाली क्लाइंटेल है उसके लिए तो आइडियल है ही, क्योंकि रणथंभौर पास में है, कूनो भी पास में है, और वहाँ पे घड़ियाल सेंचुरी है, वो भी 15 किलोमीटर पे है। इसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा घड़ियाल सेंचुरी कहाँ पर है ये? पाली पुणे पाली में? में, पाली। पाली में? हाँ, ये वाली बड़ा वाला पाली डिस्ट्रिक्ट नहीं है, एक रणथंभौर के पास में पाली एक और है, वो पाली है, पाली घाट बोलते हैं उसको, पाली घाट। जोधपुर वाला नहीं ना? ना ना, वो नहीं, पाली घाट है इसका नाम, पाली घाट। घड़ियाल सेंचुरी मैं तो वहां पर गया हूँ, कतरनिया घाट में। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ ये चंबल नदी है ना, चंबल नदी के अरे साथ में चंबल का तो घड़ियाल, व्हाट, हाँ 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 सॉरी, माय हाँ, बैड, माय बैड, माय बैड। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। हाँ। बिल्कुल। तो इसमें तो इसमें घड़ियाल सेंचुरी में आप जाओगे कि इसमें आप बोट राइड करवाओगे? इसमें बोट राइड कराएंगे, और गेस्ट को मतलब यहाँ पे क्या, इनकी घड़ियाल की जो आप हिंदी में बोले तो अंडे देने का जो है, नेस्टिंग का है, वो हाँ भी लोगों को हाँ। एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, वो भी दिखा के लेके आ सकते हैं। तो ये इस शायद कतरनिया घाट में है, अगर मुझे याद है। नहीं, ये वहां भी यूपी। होगा, वो तो यूपी में हो गया, हाँ ये हाँ हाँ इधर हाँ। भी है, चंबल में भी। तो इस श्योपुर फोर्ट को हमको डेवलप करना है एज ए डेस्टिनेशन, नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ बट एज ए वेडिंग ऑल्सो, वेडिंग एंड क्योंकि दिल्ली के पास में है, तो इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, तो इस वाले सेगमेंट में इस प्रॉपर्टी को डेवलप करना है हमको। फिर एक इंडिया में आप लोग यार कॉन्जर्वेशन होके शादी करवाओगे क्या? नहीं करवाइए। नहीं, ये प्रॉपर्टी का कैरेक्टर ही ऐसा है। साथ साथ में देखो, हॉस्पिटैलिटी में सारी चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, फोकस तो हमारा उस पर रहेगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी। इसमें हमको बताइए कितने रूम तान पाओगे आप? देखिए, इस प्रॉपर्टी में देखें, आज से वैसे तो पुराने फोर्ट में तो बहुत रूम है, लेकिन वो तो छोटे छोटे रूम होते थे, उसमें बाथरूम नहीं थे होते थे, लेकिन ये सब करके मेरे को लगता है 50 रूम हम बनाएंगे इसमें। क्या कैटेगरी के, मतलब क्या प्राइस पॉइंट? प्रीमियम कैटेगरी एंड टैरिफ रेंजिंग 18 to 25,000 18 रुपीज। to 25,000? आप कभी गूगल करके देखना, श्योपुर फोर्ट बहुत सुंदर जगह है। अरे बट इसको तो बनाने में 3 साल लगेंगे क्या? हाँ, 2 साल लगेंगे। पूरा आर्किटेक्ट वार्किटेक्ट लेके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और एक संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है, अगर आपने सुना होगा तो। कहाँ पर? ये मैंने नहीं सुना है। ये रणथम सॉरी, ये बांधवगढ़ से 120 किलोमीटर है, और यूपी से एडजॉइनिंग है, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में है, प्रयागराज से क्लोजेस्ट? प्रयागराज क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है, 200 किलोमीटर होगा, 200 220 होगा, जबलपुर भी 250 के आसपास होगा। तो संजय डुबरी की सेम टेरेन है जो बांधवगढ़ का है, और नंबर ऑफ टाइगर्स इज आल्सो मोर देन 50, और आज की डेट में यहाँ कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। जीरो। मैंने नाम नहीं सुना, उसमें 30-40 में चला गया हूँ खुद ही। और संजय डुबरी में हमारी जो हमने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से लैंड ली है, वहां बनास रिवर के एडजॉइनिंग हमारी 16 एकड़ लैंड है। किसके एडजॉइनिंग? तो वहां पे हम, बनास रिवर है, बनास नदी है। अच्छा। हम्म। तो उसके साथ में हमको बहुत अच्छी एकोमोडेशन बनानी है, कैंप बनाना है सुंदर। आप टेंट बनाओगे क्या? कैंप कैंप, हाँ। तो आप टेंट जैसे आपने आप अफ्रीका में अपने नाम से केवल लॉज, हाँ। ठीक है। नहीं मैंने नहीं देखा है, कहाँ पर है ये? अफ्रीका में है,
हाँ बहुत अफ्रीका बड़ा कॉन्टिनेंट है, मैं कॉन्टिनेंट है। एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। हम बताते हैं। तो मैं हम वहां हाँ, पे एक ये आप जो बनाते हो ये आप परमानेंट, सेमी परमानेंट, टेम्पररी या परमानेंट? मतलब ये सेमी परमानेंट जिसमें आप नीचे का छज्जा, मतलब नीचे का खाली बेस डाल के रखे हो, उसके इसमें क्या ऊपर टेंट। आयरन स्ट्रक्चर रहता है, लोहे का स्ट्रक्चर हो गया। जो हम्म। वॉल होती है वो सीमेंट शीट की होती है, छत होती है उसमें पफ पैनल हो गया, और बाकी ग्लास, जंगल में बिल्कुल लाइट स्ट्रक्चर। तो इस तरह इसमें हमको एक बहुत अच्छा कैंप बनाना है। तो आप ये संजय खेम डुबरी विलास से, देखे हो ना रणथंभौर में, वैसा हाँ टाइप देखा क्या? है ना। हाँ हाँ, आप खेम विलास से तो काफी अच्छे होंगे। आप आपने आपने कान्हा में इसका देखा होगा, चलो इसी की बात, बंजर टोला। ऑब्वियसली मैं कान्हा, रहा हूँ वहाँ। बंजर टोला, हाँ तो आप बंजर टोला टोला के जो इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो वाला कैंप लगाएंगे वहां पे। गॉट इट, हम्म। गॉट इट। हमने उसके लिए जो आर्किटेक्ट हायर किया, जो बंजर टोला के लिए आर्किटेक्ट था, संजय प्रकाश। संजय बंजर टोला प्रकाश, का नया, बंजर टोला का ओरिजिनल आर्किटेक्ट साउथ अफ्रीकन है। हाँ तो जो, नहीं अच्छा, संजय प्रकाश है दिल्ली में, हाँ, उन्होंने किया था। गॉट इट। हाँ तो उन्हीं को हायर किया है, उनसे बातचीत चल रही है। तो संजय डुबरी में हमको अच्छा कैंप बनाना है। एक एक ये हमारे हाथ में। ओके। एक अगर आप मेल घाट टाइगर रिजर्व गए हैं कभी, हाँ, मेल घाट टाइगर रिजर्व, मेल घाट हम इंडिया का खाली ओल्डेस्ट वही टाइगर। टाइगर रिजर्व गए हैं जहां पर 5 स्टार होटल है, हम कैसे बताएं आपको, ये तो हमारा आदत खराब है ना। हाँ हाँ, तो मेल घाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। ये एक्चुअली इसका हिली, इसकी टेरेन पूरा हिली है, और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइगर रिजर्व है ये, और इंडिया के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में से है ये। बट यहाँ पे कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है आज की डेट में। इसका कहाँ पर है एक्सेसिबिलिटी? इसका हमने ना ये मेलघाट बिल्कुल एमपी के बॉर्डर पे है, तो हमने एमपी में एक कुकरू खामला नाम से जगह है, कुकरू। ओके, और ये एलिवेटेड है, ये 3,300 फीट पे हाइट पे है। मतलब पंचमढ़ी की हाइट जो है सेम इसकी हाइट है। गॉट इट। तो एक हमको यहाँ पे कैंप बनाना है। ठीक है। तो ये इस ऑलरेडी इसका ये सब इसका चीजें हमारे, एयरपोर्ट कौन सा होगा? इसका एयरपोर्ट इंदौर पर रहेगा, नागपुर रहेगा नियरेस्ट। नागपुर यहाँ से 200 किलोमीटर होगा। और और इंदौर? इंदौर भी 220 के आसपास होगा। भोपाल, पाँच हाँ पाँच भोपाल भी घंटे है? नजदीक है, भोपाल भी 200 के आसपास है यहाँ से। सब 5-5 घंटे लगेंगे? हाँ अभी तो रोड अच्छी हो गई है सारी, नागपुर और भोपाल के आसपास रोड इतनी अच्छी है कि मतलब 4 से 5 घंटे के बीच में पहुंच सकते हैं। और एक हमको एक इसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी हमारे साथ में मतलब एक लैंड और है हमारे पास में, उसमें हमको मथुरा में एक होटल बनाना है। वहां तो कंजर्वेशन क्या करेंगे? वहाँ कंजर्वेशन नहीं है, ये वैसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे को मिल गई ऐसी ही, बहुत अच्छी लैंड मिल गई, यूपी टूरिज्म से ली है हमने। तो अभी क्योंकि दिल्ली वाले सैटरडे संडे को वहीं पे होते हैं, और उस टाइम मथुरा और वृंदावन में मतलब आज की डेट में कोई ब्रांडेड अच्छी अकोमोडेशन है नहीं। तो ये एक प्रॉपर्टी, ये आईपीओ प्रोसीड्स में से मतलब 11.5 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च कर रहे हैं। बाकी हम कितना आ, कितना आप आईपीओ लिए हैं पैसा? हमने बहुत छोटा सा आईपीओ किया है, 29.5 करोड़ हमने कलेक्ट किया है। उसमें हमारे प्रोसीड्स में हमने एक मथुरा के होटल और संजय डुबरी का जो कैंप है, उन दो में ही ये पैसा जो है उनमें करने के लिए, प्लस हमारा पेंच की प्रॉपर्टी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी है पेंच की, तो उसको थोड़ा रेनोवेट करना है। तो 2.5 करोड़ रुपए हम उसमें खर्च करेंगे, अब ये वाला शिवपुर और ये या फिर कुछ मेलघाट, डेट इनसे करेंगे पूरे। और इस बीच मेरा प्रॉपर्टी देखने आएंगे जल्दापाड़ा में, हमारे बिल्कुल साथ देखेंगे बिल्कुल आप? जल्दापाड़ा, मुझे एक्चुअली नॉर्थ बंगाल में बिल्कुल करना है मुझे। मेरे कुछ डेस्टिनेशन ऐसे हैं मुझे जिनमें लगता है कि बहुत पोटेंशियल है, दुधवा है, पीलीभीत है, जल्दापाड़ा है, गोरुमारा है, आपका काजीरंगा। तो क्राउडेड तो हो गया, लेकिन वहां भी काजीरंगा करना क्राउडेड चाहिए। कुछ नहीं है वहाँ। नहीं है, तो वहां करना है। इन सब डेस्टिनेशन थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी स्पीड कम करके एक चीज को बढ़िया से बना के फिर धीरे धीरे चलेंगे, आप मेरा ये आइडिया प्रॉपर्टी है। देखने आएंगे तो लेकिन बोलिएगा। अपॉर्चुनिटी जो आएगी, आ जाएंगे। आप कहिए ना कब आना है, एक बताइए। हमको एक ये दो तो महीना दीजिए।
माय वाइफ इज एक्सपेक्टिंग कोई नेक्स्ट दिक्कत नहीं है, इन बिल्कुल 2 बिल्कुल। वीक्स, सो उसके बाद ही, वरना मैं तो बोलता तो कभी चले जंगल में। बधाई हो, बिल्कुल बिल्कुल, टाइगर आएगा घर Yeah, में। yeah. Hi, Pranay ji. I mean, this is Deepak Podar. Yeah, Yeah, sure, please go please. ahead. Yeah, thank you so much, sir, for taking There's time other out for investors this in this. call. I am so sorry. I thought I was alone. I am so sorry to hijack So it there like are this. I'm some so 10, 11 sorry. investors. Yeah. I'm so sorry. I thought it was one-on-one. I was not aware. I am really, really sorry. No problem. Sir, thank you very much for the insights that अच्छा, इसका you टाइम have given earlier. अच्छा, आई थिंक वी नीड टू इंक्रीज द टाइम आल्सो आफ्टर 7 मिनट्स, क्योंकि शायद टाइम Okay. लिमिट होती है इसमें, तो उसको दूसरा तो भेज देंगे ना। हाँ, दूसरा लिंक भेज देंगे। So हाँ प्लीज सर, currently, बताइए। currently we have got 6 properties, right? So 6 properties, how many room we have? सर एट प्रेजेंट वी हैव 87 रूम्स। हमारे कैंप तो 4 ही 87. हैं आज की डेट में, बट 2 हाँ. हमारे रेस्टोरेंट हैं, तो हमने वो प्रॉपर्टीज में ही काउंट करके किया है। ओके हाँ। ओके ओके। और अपना टारगेट क्या है, मतलब ये FY25 एंड में कितने रूम्स प्रॉपर्टीज हो जाएंगे FY26 में? सर देखिए, अभी हमारे हाथ में जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, एक संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में जो प्रॉपर्टी बनानी है, हाँ. उसमें हम 30 रूम प्लान कर रहे हैं। 30 रूम्स, और ये कब एक तक रेडी हो जाएगी? सर मतलब मैक्सिमम 2 साल यहाँ से, तो 26 की बैलेंस शीट में रेडी हो जाएंगे, बट उसके प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, मतलब वो नहीं आएंगे। 2 साल लगेंगे यहाँ से, ये मान लीजिए आप 20। ओके। हाँ, एक मथुरा का होटल जो बन रहा है वो हो गया, उसमें फिर इसको कितना टाइम लगेगा? सेम सर 2 साल। मथुरा का होटल, ओके हाँ 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 हाँ। और एक ओके। श्योपुर फोर्ट है, वो उसका भी हाँ, वो आप कॉन्जर्वेशन चल रहा है। पुनः, और उसमें कितना टाइम बिल्कुल, लगेगा? उसमें 2 साल लगेगा, राइट? हाँ 2 साल में वो भी हो जाएगा। और एक वो मेलघाट टाइगर रिजर्व के पास में प्रॉपर्टी है, तो इतना टाइम उसमें लग जाएगा। उसमें भी 2 साल। बट इस बीच में हम लोग और भी देख रहे हैं, कोई कुछ रेडी प्रॉपर्टीज हो, किसी के साथ जॉइंट वेंचर हो तो जाए, उसमें अपना कुछ ग्रोथ लीज कैसे पे मिल। आएगा? आई मीन करंटली वी हैव गॉट 87 रूम्स, अभी जो भी आप नए प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं दैट विल कम इन 2 इयर्स, सो व्हाट विल ड्राइव द ग्रोथ फॉर अस इन नेक्स्ट 2 इयर्स? बिल्कुल बिल्कुल सर, ग्रोथ के लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ और प्रॉपर्टीज आजकल, क्योंकि अब आईपीओ के बाद में थोड़ी हमारी विजिबिलिटी बढ़ गई है, तो कुछ लोगों ने अप्रोच किया है। तो अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी जो हमारी थीम में होगी, हमारी सोच के हिसाब से होगी और वो मिलेगी, तो वो हम लोग लीज पे ले लेंगे, तो ऐसा प्लान है। हाँ 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 हाँ। ओके ओके ओके, वी कैन टेक ऑन लीज। तो अभी 87 रूम्स हैं, तो 2 साल में कितने रूम्स हो जाएंगे? 2 साल में सर देखिए, 90 रूम तो यही हो गए मथुरा और संजय डुबरी मिला के, और 50 रूम फोर्ट के हो गए, तो 140। और 30 रूम हम वहाँ पे प्लान कर रहे हैं, तो 170 से 80 रूम और ऐड हो जाएंगे हमारे, जो एज पर प्लान है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और जिस पे हमें वो मतलब ये तो है ही, प्लस देखेंगे और कुछ अगर बीच में कुछ लीज वाले मिल जाएंगे तो। तो ये मेल घाट में भी 30 रूम्स प्लान कर रहे हैं हम लोग? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 30 रूम। तो इसमें जनरली यूनिट इकोनॉमिक्स कैसा रहता है? आई मीन हाउ मच केपेक्स वी नीड टू स्पेंड, उसमें उसमें ROIC क्या रहता है, और एवरेज रूम रेंट अपना कैसा रहता है? देखिए सर, एवरेज रूम रेंट हमारा ये 15,000 से 25,000 रहता है, 15 से हाँ 25,000 की रेंज में रहता है। हाँ और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से देखें, तो आप, ये मैं आपको एक रेंज बता सकता हूँ कि विद मतलब नॉन उस सब सारी जो कॉमन फैसिलिटीज होती हैं उसमें आपका डाइनिंग, पूल, स्पा, ये सब आके पर रूम कॉस्टिंग 35 से 45 लाख के बीच में आती है। पर रूम कॉस्टिंग 35 से हाँ 45 लाख। हाँ। और इसमें जंगल लैंड वाले में कॉस्ट क्या है कि, इंक्लूडेड है या लैंड कॉस्ट एक्स्ट्रा है? हाँ लैंड कॉस्ट इंक्लूडेड है। हाँ हाँ और ओके। जंगल में क्या है कि थोड़ा सा अकोमोडेशन जो है छोड़ कम रखनी पड़ती है, क्योंकि वो तभी गेस्ट को जंगल का मजा आता है। हाँ तो हम हाँ कोशिश करते हैं कि जो भी अकोमोडेशन है 20 से 30 के बीच में ही हो, इससे ज़्यादा ना हो, तो इतनी रखते हैं, तो उसके और हिसाब से। ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है जनरली? ऑक्यूपेंसी साहब इसमें क्यों अभी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या है, जंगल 3 महीने के लिए बंद हो जाता है, और जो भी अगर वाइल्ड लाइफ हाँ कहीं भी जाएंगे इंडिया में, तो वो 3 महीने तो हमारा ऑफ सीजन रहेगा ही।
बट अब जब से वो पिछले बारिश 2 साल से बारिश के समय। हाँ, बारिश में ना कोर फॉरेस्ट को बंद कर देते हाँ हैं। लेकिन हाँ हाँ पिछले हाँ। 2-3 साल से देखा है हमने, जो ट्रेंड है कि उसमें भी वीकेंड्स में छुट्टियों के टाइम ना लोग आते हैं, और वीकेंड तो अच्छे चले जाते हैं। फिर भी आप एवरेज ऑक्यूपेंसी हम्म। 2 साल बाद में 50% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुरू में तो अगर आप 25 से 35, 40-35% के बीच में रहेंगे, पर 2 साल बाद में जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा तो आप 50% प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब एट द स्टार्ट मे बी 35-40% एंड इन 2 years हाँ, 50%। आप स्टार्ट 25 से ही करना पड़ेगा, मतलब हो सकता है 25 रहे पहले साल में, 30-35 ऐसे हो। ओके ओके Hello, ओके ओके, तो ये I'm अपने sorry ग्रोथ to किस हिसाब disturb in से between. एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Hello, I'm sorry to सॉरी, disturb in between, but the meeting is going to end in few minutes. I've generated a new link and sent on the mail. या प्लीज Please what log in sort of from the fresh what sort of link. CAGR we can Thank look you. at? I mean, rough range would do. I Yeah, know so we link, want where are exact you number, sending the link? but किस range में अपने It's on the growth mail. expect कर रहे हैं? हाँ दीपक जी, आप देखिए, Mail? आपके पास What? मेल है हमारे हाँ साथ, मेल तो अगर है मेरे हमको पास। जो आई भी मीन अपॉर्चुनिटी व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी, चाहिए और इसमें था। अपॉर्चुनिटी इस वाले सेगमेंट में मुझे काफी दिखती है। पारुल, आप क्योंकि इंडिया नवाज में को भेज दो, Yes, sir. नवाज भेज देंगे फटाफट। Yes, sir. करीब सर 55 जब तक ये टाइगर मीटिंग चल रिजर्व रही है, है मैं एक दो क्वेश्चन और और पूछ लेता 55 में हूँ। जिनमें ये आपने टूरिज्म है वो Deepak, I'm just going to on the message board. I'm typing the email that has come. वो You सिलेक्टेड can है, see that और other सिलेक्टेड thing. You में भी can बहुत take सारे that. कई ऐसे See, it's हैं, on the. I've posted the या email that has just. तो जहां yes साहब I ये can अपॉर्चुनिटी see this link. मिलेगी, So shall हम we हो join सकेगा on उसको this एक्सप्लोर new करने की link? कोशिश करेंगे। पारुल, Yes. हाँ पारुल, आपने इसी में कर दिया ना? हाँ, ठीक कर दिया। ठीक है, ठीक है, उसी पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक 1 मिनट आप कंटिन्यू इस पे भी रख हाँ तो सकते मैं हैं। इसका पूछ कुछ लेता हूँ सर, मैं ये ग्रोथ किस हिसाब से हाँ, एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई मीन मैं हाउ आपको हाउ ऐसा मच कुछ ग्रोथ वी लुक एट CAGR in कंटेंट next नहीं 2-3 बता नहीं years? सकता, लेकिन Like पूरी at पूरी पूरी 50%? पूरी कोशिश रहेगी साहब, पूरी कोशिश देखिए, जब रहेगी उससे रेवेन्यू को मैं बेटर नंबर्स करने आपको की, नहीं जहाँ बता सकता अपॉर्चुनिटी हूँ। मिलेगी वो पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा मतलब लास्ट 2-3 साल में आपने 50% अबव ग्रो किया है। आई मीन उतना अपने टारगेट करेंगे एटलीस्ट ग्रो करने। कोशिश पूरी रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, और इसमें मार्जिन किस हिसाब से अपने देखते हैं? मतलब हाउ डू वी सी द मार्जिन? देखिए, हमारा टारगेट रहता है कि बिटा मार्जिन 30% से ऊपर रहना चाहिए। कोशिश रहेगी कि वो मेंटेन रहे, क्योंकि शुरू में एक्चुअली क्या, नई प्रॉपर्टी होती है ना, नई प्रॉपर्टी में क्योंकि खर्चे तो इसमें हमारे यहाँ मैन पावर के मेन खर्चे होते हैं, या फिर मेंटेनेंस के, पावर के, ये सब खर्चे तो हो जाते हैं। अब ऑक्यूपेंसी अगर हमारी 25-30% है, तो शुरू के 1-2 साल में थोड़ा स्ट्रगल रहता है। जो ये मार्जिन है, फिर 2 साल बाद में अच्छे इंप्रूव हो जाते हैं। ओके, बट अभी तो हम लोग कितना कर रहे हैं? लास्ट ईयर हम लोगों ने 34% किया था, राइट? हाँ, 34-35% चल रहा है। तो जो भी नई प्रॉपर्टीज ऐड होंगी, तो उसमें शुरू में हो सकता है पहले मतलब एग्जैक्टली सेम ना आए शुरू के 1-2 साल, बट वो बेटर हो जाएगा टाइम के ये साथ। 30% प्लस इज व्हाट सस्टेनेबल इन स्पाइट ऑफ एडिंग द कॉस्ट फॉर द न्यू प्रॉपर्टी? न्यू प्रॉपर्टीज में कम रहेगा थोड़ा, क्योंकि उसमें पूरी टीम तो पहले ही रखनी पड़ जाती है, पावर बाकी सब खर्चे पहले हो जाते हैं। न्यू प्रॉपर्टीज में शायद थोड़ा कम रहेगा। आगे वो हाँ समझ गया, बट एट द कंसोल लेवल पे अपने 30% एटलीस्ट मान सकते हैं कि न्यू प्रॉपर्टी में कम रहेगा और ओल्ड प्रॉपर्टी पे 34-35 रहेगा, तो एवरेज 30% प्लस हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, राइट? करेक्ट, अंडरस्टूड। और इसमें ये जस्ट होल्ड। हाँ जी, प्लीज। और इसमें केपेक्स अपने कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2 साल? व्हाट इज द केपेक्स अमाउंट जो आपने आईपीओ में लिया था, वही अमाउंट है या कुछ डिफरेंट है? नहीं, देखो, आईपीओ में तो हमने 29.5 लिया है। उसके अलावा कुछ हमने डेट भी मथुरा के लिए और इसके संजय डुगरी के लिए डेट भी टाई अप किया है। और कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, हमको लगेगा अच्छा प्रॉमिसिंग है, तो उसके लिए कैपेक्स तो और रिक्वायरमेंट रहेगी हमको, क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी। तो अपनी डेट रेज करेंगे क्या? आई मीन इक्विटी तो हम लोगों ने रेज कर लिया है। हो सकता है फर्दर कुछ इक्विटी डेट, कुछ भी रेंज, या कुछ इंटरनल एक्रूवल के अलावा अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, तो तीनों में से एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारे को मतलब कंपनी के लिए जो मोस्ट सुटेबल होगा वो करेंगे। और अपनी कोई सीजनैलिटी भी है क्या? सीजनैलिटी मतलब कोई क्वार्टर बेस्ट होता है? 3 महीने तो पार्क बंद रहता है, वो वाला ऑफ सीजन ही रहता है। हाँ और और अक्टूबर बाकी से लेके अप्रैल तक पीक सीजन रहता है। और ताडोबा में तो मई जून भी पीक सीजन रहता है, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे वेजिटेशन कम हो जाता है, साइटिंग्स अच्छी हो जाती हैं, तो लोग ज्यादा आते हैं। तो ऑफ समझ सीजन गया। आप 3 महीने मान लो आप।
समझ गया। जुलाई और ये अगस्त जनरली अपना फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में स्प्लिट क्या रहता है रेवेन्यू का? फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में स्प्लिट रहता है कि फर्स्ट हाफ में 40% बिकॉज ऑफ सीजन रहता है उस समय सेकंड क्वार्टर, एंड सेकंड हाफ में 60-70% रेवेन्यू आता है देखिए, अपने अब हिसाब से। फर्स्ट हाफ तो हो गया आपका अप्रैल हाँ, अप्रैल अप्रैल मई मई जून जून। हमारा। हाँ, वो हाँ, ठीक रहता है, अच्छा रहता है वो। जुलाई अगस्त सितंबर हमारा ऑफ सीजन होता है। अक्टूबर से सीजन शुरू होता है, बहुत अच्छा रहता है। दिसंबर वाला क्वार्टर तो सभी के लिए, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है, क्योंकि दिसंबर तो वैसे भी पीक सीजन रहता है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब आप वैसे रेट करें तो बेस्ट है। फिर आपका जनवरी फरवरी मार्च वो ठीक है। अप्रैल मई जून है वो भी अच्छा है। हम्म, समझ गया, हम्म। समझ Deepak, I गया। think और in ये this business, I think in the safari business, I think probably 80% of the revenue will be H2. 80% of the revenue, yeah, that's what I was Yeah, looking yeah. for. Being an ardent safari guy, I can tell you that because in the summer, which is April, May, June is too hot in India. So only absolute crazy people go, like Ranthambore and all. And then the entire rainy season, all the parks in India are shut. So you have zero revenue. Understood. And 85% of the revenue will be from on quarter two, quarter three, Quarter quarter 3 and four. quarter 4. Understood. And this was Yeah, last it's a couple of little, yeah, queries. generally the business hotel is H2 is 2x of H1, but in a safari business, H2 will be probably 4x or 5x of H1. I got it. That's very helpful. And last couple of things, I mean, अभी ये हम लोगों ने दिसंबर तक क्या कितना रेवेन्यू कर लिया? I mean, in 9 months, how much revenue we have done? दिसंबर सर मुझे पता नहीं, मैं ऑथराइज्ड हूँ कि नहीं ये सब डाटा बताने के लिए। फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ में कितना कर लिया? हाँ, अजय सिंह जी, मैं क्या, आई डोंट नो इफ यू कैन शेयर द डाटा। आप Good मुझे afternoon, सर everyone. Yeah, good afternoon. Yeah, actually, we can't share the data after quarter one. Okay. Okay. अच्छा, We can quarter share one after that release date, so that's what quarter one we have achieved 5.72 crore total income. Correct. I got it. ठीक है, I think that's it from my side. That's very helpful. I will let other investors. अच्छा गजेंद्र जी, Thank you. मेरे को Well, भी I have दो a small question. Sorry, I know you can't share the data, but quarter one is 5 crores. Am I correct? 6 Yeah, 5.72 CR. And generally, quarter three and quarter four will be 4x, 5x of quarter one. If you look at your history, can you give us some sense on that? सर ये वैग होगा Yes. बिल्कुल ही, तो बताने से कोई फायदा नहीं है ये फिगर। Okay. गजेंद्र जी, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। गुड आफ्टरनून सर। मैं अविनाश बोल रहा हूँ। हाँ, गुड आफ्टरनून जी। गजेंद्र जी, मेरे को बताइए, ये जो संजय डुगरी पार्क है, ये जो टाइगर रिजर्व है, प्लस आपका मथुरा का होटल है, और प्लस ये जो आप फोर्ट का बात कर रहे थे, शिवपुर फोर्ट, सर अगर मैं मान के चलूं कि सर FY27 में एटलीस्ट 6 मंथ्स इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कुछ दिखाई देगा? आई मीन, जब प्रोजेक्ट तैयार होगा कब से ये कमीशन होगा? आई मीन, ओवरऑल कमीशनिंग की डेट अगर आप थोड़ी सी आइडिया दे तो। FY27 में तो होगा, इसमें 6 मंथ का रिजल्ट आने चाहिए। अच्छा, 6 मंथ्स तो आना चाहिए फॉर बोथ द अच्छा। संजय डुगरी एज वेल एज फॉर द हेरिटेज फोर्ट, वो जो शिवपुर फोर्ट। तीनों प्रॉपर्टी का ऐसा लग रहा है मुझे कि 27 FY जो होगा 27-28 में, उसमें मैंने मोटा मोटी सर हम मान के चले कि सितंबर में ये शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल होना सितंबर टू चाहिए, मार्च का बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा गजेंद्र जी, और एक बात बताइए, देखिए ये तो मानता हूँ कि सर सेंसिटिव डेटा तो हम पूछ नहीं सकते, आप बता नहीं सकते, बट मेरे को बताइए कि सर पेंच, तड़ोबा और काना का अगर मैं एवरेज रूम रियलाइजेशन पूछूं, आपने एवरेज 18 से 25 हजार बोला है, अगर हमको बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करना है, क्योंकि देखिए कैपेसिटी तो प्रोस्पेक्टस में है, प्रेजेंटेशन में आपने दी है, मोटा मोटी सर व्हाट इज द विच इज द रिसोर्ट व्हिच एंजॉयज द हाईएस्ट, whether it is Pench, Tadoba और काना, सर और उसका जरा तड़ोबा बताइए। सर, तड़ोबा इज नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टैरिफ। ओके, ठीक है, काना तड़ोबा इज नंबर 1 है, उसके बाद काना इज नंबर 2 हाँ, एंड पेंच इज नंबर 3। और ओवरऑल सर अभी जो करंट जो अपने 4 जो हमारे कैंप्स है सर, वहां पे एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी होगी? आपने बोला सर नए यूनिट्स को पहले साल में शायद 25% यूटिलाइजेशन होगी, के साल में अगर हम बिल्कुल। ये मान के चले करंट ईयर, तो वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का नंबर तो आप शेयर कर सकते हो सर।
बिल्कुल बिल्कुल सर, पेंच मुझे लगता है 60% प्लस होगा, ओके और ताडोबा भी 60% के आसपास ही होगा। ओके हाँ, और काना शुड बी अराउंड 50। ओके। और रुखड़ थोड़ा कम होगा क्योंकि वो नई हाँ, प्रॉपर्टी थी नई जंगल प्रॉपर्टी। में। हाँ हाँ, तो वो थोड़ा कम होगा, वो 30s में होगा। ओके। और मेरे को एक बात बताइए, जैसे अभी एक पार्टिसिपेंट ने पूछा दीपक जी ने कि सर ग्रोथ कहाँ से आएगा, तो ये मान के चले कि सर हर साल कम से कम 5-6% तो सर प्राइस इंक्रीज होती है, क्योंकि सर डिमांड तो बहुत अच्छी है, शौकीन लोग आते हैं। तो सर आप मेरे को एक बात बताइए कि रूम तो हमारी 87 रूम्स है, अब 2 साल के बाद 170 रूम्स हो जाएगी। बट अगर मैं FY25 की बात करूँ और थोड़ा बहुत FY26 को जाऊँ, तो तब तक तो हमारे एग्जिस्टिंग 4 कैंप्स ही हमको रेवेन्यू ग्रोथ देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो कुछ तो टैरिफ इंक्रीज होता है, लेकिन कुछ हम लोग हाँ। एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ और अपॉर्चुनिटीज। कई लोगों ने हमको अप्रोच ओके। किया है, तो शायद ग्रोथ अच्छा, हो रहा जाए। तो मोटा मोटी गजेंद्र जी, विदाउट कमिटिंग एनीथिंग, हम ये मान के चले कि अगले 12 महीने में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी, यानी ये जो आप इनऑर्गेनिक पॉसिबिलिटीज बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ होने की पॉसिबिलिटी रहेगी अपने को? बिल्कुल रहेगी सर। हमारे एक्चुअली हमारे थीम की टाइप की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शब्द जी, अभी मैं इंटरनेट पे देख रहा था सर, कैंपिंग जो एक इंटरेस्ट है वो बहुत यंगस्टर्स में, लोगों में बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मेरे को मोटा मोटी बताइए सर, ओवरऑल अपॉर्चुनिटी मार्केट साइज हमारा क्या है, क्योंकि देखिए मैं मार्केट से हूँ। सबसे बड़ा जो चैलेंज आपकी कंपनी का है, आई मीन बिल्कुल प्लीज डोंट फील बैड सर, क्या है कि इसमें मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए कि मार्केट आपके कंपनी के बारे में कैसी सोचती है सर। सबसे बिल्कुल। बड़ा मुद्दा जो है ना, वो मार्केट ये देखना चाहेगी कि कितना बिजनेस स्केलेबल है। अभी आप 17-18 करोड़ पे हो, अभी आप 5 करोड़ आपने पहले क्वार्टर में 5 या 6 करोड़ किया है। सर स्केलेबिलिटी के लिए क्या मैं मान के चलूं कि आज 17-18 करोड़ का रेवेन्यू है, अगले 3 साल में मोस्ट ऑब्वियसली आपका एक्सपेंशन खत्म होने के बाद कैन दिस बिकम लेट्स से 150 करोड़ और 50 करोड़ और मे बी इवन मोर देन दैट? सर रेवेन्यू के लिए कितनी जगह है? आप इतना सिर्फ बताइए, नंबर मत बताइए, दैट आई अंडरस्टैंड आप बता नहीं पाओगे, बट स्केलेबिलिटी का क्या पोटेंशियल है? सर स्केलेबिलिटी का इसमें मुझे लगता है कि कोई लिमिट नहीं है। जितनी जो पोटेंशियल इंडिया में है, जो एग्जिस्टिंग हाँ। प्रॉपर्टी तो है ही है, मतलब उनमें टैरिफ इंक्रीज होने का और कैपेसिटी, सॉरी आपका क्या बोलते हैं उसको, उनकी ऑक्यूपेंसी लेवल इंक्रीज होने का वो तो है ही है। हाँ। प्लस वो नई प्रॉपर्टीज होने का बहुत स्कोप है। अच्छा, तो और वो हमेशा हम एक्सप्लोर करेंगे। और मुझे लगता है कि जो आप बता रहे हैं डाटा, मतलब हम लोगों के भी वही टारगेट्स हैं कि वो हम अचीव करें। और मुझे ओके। लगता है कि हम बहुत कर सकते हैं आराम से, नहीं बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि इस सेगमेंट के साथ जहां पे अभी हम जहां पे 3 जगह हैं ना, हाँ। उन तीनों जगह हम वी आर अमंग द अच्छा, ओके, लीडर्स। हम बेस ठीक कर है। रहे हैं वहाँ पे। अगर आप गूगल के खोल के देखिए, ट्रिप एडवाइजर देखिए, मतलब किसी भी सेगमेंट में देख लीजिए, अगर हमारे गेस्ट रिव्यूज के हिसाब से देखेंगे हम लीडर हाँ, हैं। हम बाकी चीजों में हमारे बिजनेस के हिसाब से देखेंगे हम लीडर हैं। तो वो हमारी जो पोजीशन है वो अगर मेंटेन रहेगी, और मुझे लगता है रहेगी, क्योंकि अब हमारे को आपका जो एसोसिएशन है, लिस्टिंग के बड़े बेनिफिट हैं आप लोगों को, और हमारी विजिबिलिटी बढ़ गई है, उस सब का बेनिफिट हमको मिलेगा। बिल्कुल। तो जो आप ग्रोथ सोच रहे हैं उसी दिशा में हम सोच रहे हैं। नहीं नहीं। और मुझे लगता है कि अच्छा ग्रोथ। गजेंद्र जी, अभी एक सिंपल सवाल, ये जो अपना हेरिटेज फोर्ट है, शिवपुर का फोर्ट है, प्लस ये जो मथुरा का आपका स्पिरिचुअल टूरिज्म का होटल है, और प्लस ये जो संजय डोगरी है, सर यहाँ पे भी हम ये मान के चले कि 18 और 25 हजार के बीच में ही एवरेज रूम रेंटल रहेगा, या थोड़ा सा कम ज्यादा होगा? देखिए मथुरा में तो नहीं रहेगा, मथुरा तो बजट मार्केट है साहब। वहाँ पे तो वो हमारा मतलब वाइल्ड लाइफ वाला सेगमेंट ही नहीं है। बट फोर्ट में बिल्कुल रहेगा, और संजय डूबरी में तो बिल्कुल रहेगा। अच्छा, तो वो यही रेट हाँ 18 से हाँ 25 हजार का ही मान के चले? हाँ हाँ, फोर्ट और में इनमें मथुरा बिल्कुल वाले रहेगा। होटल में मान के चले 6-7 हजार तो कम से कम होगा, या उससे भी कम होगा? बस यही सेगमेंट रहेगा सर, ये 6-7 वाला 1000 वाले सेगमेंट ही रहेगा। अच्छा, ठीक हम्म, ठीक है सर, आई थिंक बहुत बढ़िया। या ठीक ठीक ठीक। तो मुझे ये समझना था अब नेक्स्ट कि आप ये कॉन्जर्वेशन के लिए हाउ आर यू using the resources, and how are you making sure that this conservation is sustainable? How are we giving back to the sort of
conservation efforts that are there, or is it completely done by the state? No? देखिए सर, हम हमारा जो इसमें पार्टिसिपेशन रहता है, नंबर वन तो वहाँ लोकल टीम जो है, वहाँ जो आसपास गांव के जो लड़के हैं, जो टीम है, उसको ट्रेनिंग में आप जो कंट्रीब्यूशन हमारा रहता है, जिस हिसाब से हम उनको मतलब ट्रेन करके हमारा हिस्सा बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी एक मेजर कंजर्वेशन मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन है उसमें। प्लस उसके बाद हम लोग स्पेशल कैंपेन चलाते हैं हमारी प्रॉपर्टी के आसपास। मतलब पीवीसी हमारी प्रॉपर्टी में तो यूज करते ही नहीं है, बट बाहर देखें तो आपने सभी जगह देखा होगा कि लोग प्लास्टिक काफी दिख जाती है। तो इस तरह के कैंपेन में हम लोग क्लीनिंग के कैंपेन चलाते हैं। प्लस गाइड्स की ट्रेनिंग, हमारे जो नेचुरलिस्ट हैं, वो जो गांव के बच्चे होते हैं, उनकी गाइड्स की ट्रेनिंग वगैरह भी हम कराते हैं। प्लांटेशन, आप अगर हमारी प्रॉपर्टी किसी को भी देखेंगे, विजिट करेंगे, तो जो वहाँ के नेटिव प्लांट्स हैं उनमें हम मतलब सारी प्रॉपर्टी में हम सभी में आपको ऐसे बिल्कुल जंगल वाली ही फील आएगी। हमारी पेंच वाली प्रॉपर्टी में तो हमने एक पूरा एक इको पार्क डेवलप किया है, जिसमें कंप्लीट फॉरेस्ट ही है। वहाँ पे हम गेस्ट को देखे जाते हैं, सफारी कराते हैं उनको नेचर के बारे में, उन प्लांट्स के बारे में, वो उनको सब बारे में एजुकेट करते हैं जंगल के में। प्लस जो हमारे नेचुरलिस्ट हैं, वो हर गांव मतलब गांव के स्कूल में जो भी हमारे टूर गेस्ट आते हैं उनको लेके जाते हैं, उनका लेक्चर भी कराते हैं। तो उनको गांव के जो बच्चे हैं स्कूलों वाले, उनको भी मोटिवेशन मिलता है इससे। तो फिर आसपास एक जैसे पेंच के पास में एक पोट्री विलेज है, तो पोट्री विलेज इतना पॉपुलर हो गया है पेंच में। मतलब जो भी हम लोग, सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी नहीं, कि किसी के भी गेस्ट आएंगे तो पोटर्स विलेज लेके जाते हैं। उस जब 2005-6 में जब हमने प्रॉपर्टी शुरू की थी, तो उस गांव में कोई एक दो पोर्टर थे, वो भी खत्म होने वाली थी उनकी वो आर्ट। लेकिन अब उस गांव में वो एक आर्ट दोबारा से काफी मतलब पॉपुलर हो गई है, उसकी वजह से, लोगों के ध्यान की वजह से। तो हम लोग इस हिसाब से जो हमारी कैपेसिटी में है उसमें हमको कंट्रीब्यूट करते हैं। नहीं तो फिर जंगल, ये तो सब जंगल के बाहर हो गया। जंगल के अंदर हाँ, इंडिया में क्या है, जैसे कि ऑब्वियसली इट्स बीइंग मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन ये सब रेंजर्स ये सब है, उन लोग का जो नया ये कैमरा ट्रैप्स, ये सब में अपने हेल्प नहीं कर सकते इवन इन द बफर एरिया। नहीं इस पे नहीं कर सकते बफर बिल्कुल। एरिया जंगल के अंदर तो सब नहीं, जंगल के अंदर या बफर में हम मतलब अगर आप चाहो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब आप गार्ड्स की यूनिफॉर्म दे सकते हो, सर्द में कपड़े दे सकते हो, उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। अदरवाइज और कोई कंट्रीब्यूशन का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप चाहो तो आप वहाँ म्यूजियम बनवा सकते हो, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सब अप्रूवल लेके। लेकिन ये सब चीजों में अभी हम लोग नहीं हुए। जैसे पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पेंच में एक म्यूजियम बनाना चाहा, तो हमने भी हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें दिया। तो बट वो उनके साथ ही होता है, उसमें लीड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही लेता है। और उनको जो हेल्थ असिस्टेंस चाहिए होती हाँ है, बताइए प्लीज। हेलो। उस एरिया की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लोग करते हैं। हाँ जी नहीं, वी हैव नॉट क्लोज द हाँ मीटिंग, जी, वो नेटवर्क का कुछ इशू हाँ सर, है। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, एक्चुअली ओके, आपने प्लीज जॉइन अगेन। मथुरा के साइट के बारे में बताया हमें पहले, लेकिन मेरा डाउट ये सर था मेरे कि सिस्टम का हमने नेटवर्क आज तक डिस्कनेक्ट हो ऐसे गया। कोई भी साइट्स में एंटर नहीं किया है जहाँ पे हमें बजट ऑफरिंग करना पड़े, या सर फिर हम नॉन वाइल्ड डिस्कनेक्ट हो लाइफ गया की तरफ हम नेट। वेंचर करें। तो ये सर जो नेटवर्क हमारा का इशू डिसीजन है। था वो किस तरीके से हमने लिया था, क्या सोच के लिया था, ये जानना था। सर मैंने बोला था बिल्कुल, पेड वर्जन के लिए एक अभी। सेकंड प्लीज। हाँ, एक मिनट। श्योर श्योर, नो। सॉरी 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 सॉरी। नो वरी हाँ सर, जी, नो वरी, नो। हाँ। श्योर। अच्छा, एक्चुअली क्या देखिए, मथुरा प्योरली वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ तो किसी आसपास भी नहीं है, मथुरा के साथ में है। और मथुरा लगा क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ रहा है ना, तो स्पिरिचुअल टूरिज्म को भी लेके साथ चलना चाहिए। दिल्ली की इतना पास है मथुरा, वन ऑफ द हॉट डेस्टिनेशन है। सब उनसे बात चल रही है, बट अभी डिसाइडेड नहीं है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा डिसाइड करेंगे। बट बीइंग ए गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, ठीक है सर, ओके।
और सर दूसरे एक आध क्वेश्चन ऐसे मुझे ये जानना था, जहाँ पे हमारे रिसोर्ट्स बने हैं, जहाँ पे हम लैंड पार्सल किस तरीके से रखते हैं, मतलब क्या वो पूरी तरीके से लीज्ड होते हैं, कहीं पे अक्वायर्ड है नहीं है, और अगर लीज्ड है तो वो कितने टाइम फ्रेम के लिए लीज्ड है, क्योंकि उसके बाद रिन्यूअल करवाना पड़ेगा लीज का। प्रॉपर्टी है, कान्हा भी ऑन प्रॉपर्टी है, ताड़ोबा भी ऑन प्रॉपर्टी है। ठीक है। और सर दूसरी एक चीज ऐसे पूछनी थी, क्या हम सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज करने का ट्राई कर रहे हैं जैसे महिंद्रा हॉलीडेज करता है? अभी हमारी इतनी बड़ी साइज नहीं है, क्योंकि महिंद्रा के पास डेस्टिनेशन इतने सारे हैं। हम 3 डेस्टिनेशन के लिए कोई सब्सक्रिप्शन में मतलब ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं है, नहीं होगा। लेकिन जब हमारी अच्छी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी, जब हमारे पास नंबर्स होंगे, 15-20 प्रॉपर्टी होंगी, तो उस टाइम मेंबरशिप वाले, आप मतलब सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप से मतलब है ना आपका, तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है सर। और सर दूसरी एक चीज, शायद आपने छोटा सा एक हिंट दिया था बीच में कि जो प्लांटेशन वगैरह रहता है रिसोर्ट के आजू बाजू, उसका भी आप ध्यान रखते हैं, तो जो वाइल्ड लाइफ हाँ हाँ, वो होता है, मतलब जो पशु है, उनका भी हम ध्यान रखते हैं, और रिसोर्ट के अलावा जो भी प्लांटेशन है उसका हम ध्यान रखते हैं नहीं रखते हैं, और अगर हम रखते हैं तो क्या वो हम इन हाउस रखते हैं या हम किसी को आउटसोर्स करते हैं? क्या है, देखो वाइल्ड लाइफ का तो ध्यान वाइल्ड लाइफ अपने आप ही रखती है, उसको वो ध्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी नहीं रख सकता है। वो अपने स्वच्छंद प्राणी है, वो जहाँ जाएंगे जैसे जाएंगे, वो उनकी लाइफ है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक है। प्लांटेशन आप प्रॉपर्टी के अंदर आप प्लांटेशन करो, बाहर जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी प्लांटेशन करता नहीं है, करता है तो वो अपने लेवल पे करता है। तो उसमें मतलब हम प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारा है प्लांटेशन वही करते हैं। ओके, और वो हम इन हाउस मतलब हमारे ही लोग करते हैं या हम किसी को आउटसोर्स नहीं कर नहीं, हम देते लोग हैं? ही करते हैं, हमारी टीम रहती है। हाँ और अम, ठीक है, आपने मार्जिन्स के बारे में मुझे बता दिया था। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और कोई है? अभी हो थैंक गया यू सर। आप। सर